Okay, so you all should be on your page 56 of the textbook. We were learning that the various landforms get their shape, or the various landscapes. They occur because of the various agents, various factors like rivers, waves, glaciers, wind, etc. Rivers, we had already started. We learned about waterfall. We know that how a waterfall occurs. When the water passes, the river passes through a steep slope. You know what is a steep slope, all of you? Yes. Then in the next page, that is on page 56, we learned about the different stages of the river. That as the river flow, जैसे जैसे flow differ होता है, sometimes it is fast or sometimes it is slow, sometimes it makes the shape of a bend or a curve, sometimes it makes the shape of an oxbow, sometimes it makes the shape of a horseshoe, etc. etc. Right? So flow of the river continues and it results into the deposition and erosion. Now I think you know what is the process of deposition and erosion, all of you? Yes. Okay, let's see the reading part. As the river enters the plains, it flows there. There are twists and turn forming large bend known as meanders. ये शायद आपने हमने डिस्कस किया था, meanders है ना. देखो, I'll just show you in the picture. When the river is flowing like this, right, then this bend and curve, ये वाले जो curves होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? Meanders. Okay, due to continuous erosion and deposition, जब वाटर कुछ लाके बैंक पे रख देता है तो दैट इज डिपोजिशन, और जब रिवर वाटर सब चीजें लेकर चला जाता है इट इज नोन एज इरोजन. ये शायद आपको याद होगा. Yes. Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and almost assume the shape of a horseshoe or a circle. You can see this is the shape of a horseshoe. हॉर्स का शू आपने देखा है, इसी शेप का होता है. बहुत लोग घर के बाहर भी हॉर्स का शू लगाते हैं, ये शगुन के लिए, अगर आपको पता है तो. जैसे कोई कोई घर के बाहर नींबू मिर्ची लटकाता है, कोई हॉर्स का शू लगाता है. दैट इज मतलब ऐसा शेप होता है हॉर्स शू का, अगर आपने देखा है तो. राइट, सो दिस इज व्हाट द shape is formed by the rivers due to meanders. Okay, in this condition, when the river gets flooded due to deposition, land between the meander loops gets cut off by the river flow and river leaves its long path and takes a straight path. Now we know that as in when the deposition takes place. Now deposition matlab to bring or to take away. Yes, deposition means to bring. Okay, now river is flowing like this. Okay, अब आते आते उन्होंने बहुत सारा एल्यूवियम यहाँ पर डिपॉजिट किया है. So now what happens, because of this deposits the flow of the river slows down. अब बीच में इतनी सारी चीजें आ गई तो फ्लो तो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा. समझ में आ रही बात? ओके, एंड सो यहाँ पर क्या लिखा है, द रिवर लीव्स इट्स लॉन्ग पाथ एंड टेक्स अ स्ट्रेट पाथ. फिर उसका फ्लो जो है वो ऐसे नहीं होगा लेकिन ऐसे होगा, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बट यू कैन इमेजिन द स्पीड. समझ में आ रही है? Yes, so it takes a straight path now. The water remains in the abandoned cylindrical part of the river called the oxbow shape. तो ये सिलिंड्रिकल पार्ट जो भी है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वहां पर पानी भर जाता है, और इस भरे हुए पानी को की जगह को इट इज नोन एज अ oxbow lake. And you can very well see in the picture given to you oxbow. Is the process very clear, students? Yes. Now sometimes the river seems to flow out of its bank. कभी कभी पानी का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो it crosses the banks and comes nearer.
This leads to the flooding of the neighboring areas. आजू बाजू के एरिया में फ्लड होता है. I think you all know what is flood. Yes. So suppose this is the land. यहाँ पर लैंड है और यहाँ तक रिवर का पानी आता है. Now sometimes what happens, it crosses the bank and flows further. This results into the flood. Very easy. Now as it floods, it deposits layers of the alluvium and other materials. Alluvium means all the materials which the river brings, जिसमें sand होता है, soil होता है, mud होता है, minerals होता है, pebbles होता है, etc. etc. अब पानी का एक्चुअल लेवल तो यहाँ तक ही है. ये तो बिकॉज ऑफ फ्लड इट इज ट्रैवलिंग फर्दर, राइट. तो ये एक्स्ट्रा वाला पानी जो है इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि आपको पता है कि फ्लड में पानी बहुत स्पीड में आता है. अगर आपने वीडियोस वगैरह में देखा है तो आपको पता होगा, है ना. तो द वाटर कम्स इन अ वेरी हाई स्पीड, इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ एल्यूवियम एंड ऑल दीज थिंग्स गेट डिपोजिटेड ओवर हियर. समझ में आ रहा है. तो ये वाला प्लेस जहां पर फ्लड का पानी एंटर हुआ है और बहुत सारा डिपोजिशन हुआ है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अ फ्लड प्लेन. क्या बोलेंगे हम इसको? फ्लड प्लेन. नाउ लेट्स डू द रीडिंग पार्ट. This leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of the alluvium and other materials. Landform formed due to this deposition is called flood plain. Do you understand what is a flood plain? Yes. Now, when a large amount of silt and soil deposit, silt, underline the word silt. Silt meaning sand. Underline the word silt and write the meaning sand. So when a large amount of silt and soil deposits on both sides of the river, the raised banks are called levees. Again one new word, levees अभी किसको कहते हैं हम लोग? हाँ, yes बेटा. हाँ बोलो, yes. Page 56. फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे चले जाओ. सिल्ट एंड सॉइल. बेटा यू हैव टू रीड अलोंग विद द टीचर, अदरवाइज एक एक को मैं बोलने वाली नहीं कि कौन सा वर्ड कहाँ पर है. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस, फ्लड प्लेन सबको पता चल गया, राइट. सो नाउ दिस इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ रिवर. पानी आता है यहाँ तक और फ्लड में क्या होता है, पानी यहाँ तक पहुँच जाता है. So can you see the difference between flood plain and original river bank? Yes? Okay. Actually पानी का लिमिट है यहाँ तक, फ्लड में जाता है यहाँ पर. And because during flood it brings all the material with it flows with lot of speed, it brings all the material along with it. तो क्या होगा कि यहाँ पर भी बहुत सारा डिपोजिशन होगा और यहाँ पर भी बहुत सारा डिपोजिशन होगा, बोथ द साइड्स. ओके. और इतना सारा डिपोजिशन होता है दैट इट फॉर्म्स शेप लाइक अ स्मॉल हिल्स जितना हो जाता है, छोटा छोटा, जैसे हमारे घुटनों तक पहुंचता है या मैक्सिमम घुटनों से ज्यादा उतने बड़े. समझ में आ गया? हिल्स, ये बड़े बड़े हिल्स नहीं जो हिल स्टेशन में होते, नॉट लाइक दैट. आप इमेजिन कर सकते हो घुटनों तक कितना पानी हिल्स कितने होते हैं, है ना. So when a large amount of silt and soil deposits on both sides of the river, both sides हो गए, one this original side and other flood plain. When it is on the both sides of the river, the raised banks are called levees. What are they known as? Levees. ये words याद रखना, ठीक है. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into number of streams called distributaries. Now, whenever the river is flowing, you know that पानी
जहाँ पर स्लोप होता है वहाँ पानी चला जाता है ना। आपके घर में भी अगर आप पानी डालोगे तो जहाँ पर स्लोप होगा वहाँ पानी जाएगा। नाउ रिवर्स में क्या होता है कि द स्लोप्स कैन बी इन 2 डायरेक्शंस और 3 डायरेक्शंस, ठीक है। तो माउंटेन के ऊपर से जब रिवर आती है इट इज अ सिंगल स्ट्रीम, देन आफ्टरवर्ड्स वो स्लोप की तरफ चली जाती है एंड इट गेट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल रिवर्स। तो दिस इज नोन एज द मेन रिवर, और उसमें से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज या फिर ओनली ट्रिब्यूटरीज। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? Yes. So whenever river water splits up into other small streams, then these streams are known as tributaries or distributaries. Okay. The river becomes so slow that it begins to deposit silt and sand soil and other material. इतना पानी स्लो हो जाता है। अब स्लोप में तो आपको पता है, जैसे अब ये देखो आप, ये जो ब्लू कलर है उसमें स्लोप कितना ज्यादा है और इसमें स्लोप कम है ना। तो पानी अब इतना स्लो हो जाता है कि सभी चीजें वहीं पर पड़ी रहती है, डिपॉजिट होती जाती है और पानी धीरे से जाके ओशन में मीट हो जाएगा, राइट। सो ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। हर एक का आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक अलग अलग माउथ है, दिख रहा है। So the collection of sediments forms all the mouths from a delta. अब देखो रिवर के स्टेजेस कितने हो गए, पहले यहाँ से स्टार्ट किया अ वेरी बिग स्लोप, फिर यहाँ पर आ गए जहाँ से डिवाइड हो रहे, और फिर यहाँ पर उनका आ गया माउथ। अब ये माउथ जो है उसके आगे होगा सिर्फ लैंड। जस्ट अ मिनट, हाँ देखो ये जहाँ पर माउथ कंप्लीट होता है यहाँ पर होगा लैंड। समझ में आ रहे? तो दिस लैंड, यहाँ से लैंड में रिवर का पानी आता है जाता है आता है जाता है लाइक दिस। तो ये जो ट्राइंगल जैसा शेप बन रहा है उसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। चलो मैं अभी सिर्फ डेल्टा समझाती हूँ। देखो रिवर का पानी ऐसे फ्लो होता है लाइक दिस, ओके। फिर अगर स्लोप आ गया तो ऐसे फ्लो होगा, है ना, ऐसे भी आ सकता है। तो ये जो ट्राइंगल जैसा शेप बन रहा है इट इज नॉट एग्जैक्ट ट्राइंगल लाइक दिस, ऐसा नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि इट इज लाइक अ सिमिलर टू अ ट्राइंगल, राइट। तो ये वाले फीचर को हम लोग बोलेंगे डेल्टा। ओके, इज इट वेरी क्लियर? यस। तो ये तो हो गया रिवर का फ्लो। अब रिवर से भी बड़ा एक वाटर बॉडी है जिसको हम बोलते हैं सी। You can see the next title, work of sea waves. Now what are the sea waves? Yes. जब भी आप बीचेस में जाते हो तो आपने देखा है कि सी में बड़े बड़े या छोटे छोटे वेव्स आते हैं, एकदम ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं। हम लोग बहुत बार वहाँ पर जाते हैं ना, वहाँ पर हम खड़े रहते हैं, अंदर तक नहीं जाते, बट जैसे ही वेव आता है इट रीचेस टू अस, फिर पानी वापस जाता है आगे। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ऐसे ऊपर तक जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं वेव्स। Now, how does or what role does the sea waves play in land formation, that we are going to learn? Are you clear with the title? Okay, let's see the reading part. The erosion and deposition. अभी erosion और deposition समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। Okay. तो जैसे रिवर इरोजन डिपोजिशन करता है वैसे सी वेव्स भी करेंगे, ओके। सो द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। रिवर में बनता था डेल्टा और सी में बनता है कोस्ट। सी कोस्ट आपने सुना है ना, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बीच, है ना। तो रिवर बनाता है डेल्टा, सी बनाता है कोस्ट, तो उस एरिया को हम बोलते हैं सी कोस्ट,
राइट, या फिर जोग्राफिकली उसको बोलेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉक्स। अब आपने देखा है कि वहां पर बड़े बड़े रॉक्स भी होते हैं बीचेस पे, राइट, और वो सी वेव्स जो रॉक से टकराती है, आती है जाती है, आती है जाती है, और टकराने के बाद उसको क्रॉस करके भी पानी उड़ता है दूसरी तरफ। ये शायद आपने देखा होगा, है ना। तो अभी आपको पता है कि इफ द सी वेव्स आर वेरी बिग, तो उसमें इतना पावर होता है कि वो रॉक्स को वो तोड़ भी सकते हैं, है ना। अब एक ही रॉक है और उस पे 50 बार सी वेव्स टकराएगी, तो देयर कैन बी क्रैक्स इन द रॉक, यस और नो, राइट। सो sea waves continuously strike against the rocks. As a result, cracks develop. उसमें cracks पड़ जाते हैं, सीधा तो टूटेगा नहीं, धीरे धीरे टूटेगा। Okay? Turn on the videos, all of you. So as a result, cracks develop. Over the time, they become larger and wider, which are called sea cave. अब जैसे पानी ज्यादा टकराएगा, वो क्रैक्स बड़े 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 होते जाएंगे। ये तो आप इमेजिन कर सकते हो ना, राइट। तो अब ये क्रैक्स इतने बड़े हो गए, इतने वाइड हो गए कि वहां पर केव जैसा शेप बन गया। यू नो व्हाट इज अ केव? यस। तो सपोज ये हमारा रॉक ऐसा है, एक्चुअली रॉक का शेप ऐसा परफेक्ट नहीं होता, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। नाउ व्हाट हैपेंस कि पानी कंटिन्यूअसली यहाँ पर आता है और यहाँ पर स्ट्राइक करता है, तो ये जो इसका ऐसा शेप है उसमें हो जाएंगे क्रैक्स, ऐसे ऐसे पानी की वजह से टूट जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो क्रैक्स है वो पूरा निकल जाएंगे एंड इट विल गिव द शेप ऑफ अ केव। ऐसा शेप हो जाएगा जहां पर पानी अंदर जाएगा और फिर वापस निकल जाएगा। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ द रॉक्स बिकम केव? यस, इसको हम बोलेंगे सी केव, क्योंकि सी वेव्स की वजह से केव्स आर फॉर्म्ड। नाउ एज दिस केविटीज बिकम लार्जर, केविटीज मतलब केव्स, अब ऐसा तो नहीं कि केव बन गया तो पानी, जो पानी पहले यहां तक जाता था अब वो यहां तक जाएगा अंदर तक। तो सपोज ये हमारा रॉक था, ठीक है। अब क्या हुआ कि पानी की वजह से ये वाला पूरा टूट गया और ये बन गया केव। नाउ जैसे वाटर की वजह से ये वाला वॉल टूटा है, तो ये वॉल को भी तोड़ सकता है कि नहीं? समझ में आ रही है ना ऑल ऑफ यू? आई होप आई एम क्लियर। यस। सो अभी सिचुएशन क्या होती है कि पहले रॉक था ऐसा, छोटा कर देती हूँ, ऐसा, फिर बन गया ऐसा, और फिर अब इतना ही बचा है। पहले ये वाली दीवार टूट गई, अब ये टूट गया, अब सिर्फ रूफ बच गया, है ना। फिर कभी कभी क्या होता है, ये रूफ भी टूट जाता है और एक सिंगल पानी का फ्लैट स्लेट जैसा बच जाता है। तो these rocks they get different shapes because of striking of the waves, और हर एक शेप को हम अलग अलग नाम देते हैं। ओके, तो इसको हम बोलेंगे रॉक, इसको हम बोलेंगे केव, क्योंकि अभी तो ये रॉक पूरा है, फिर ये बन जाएगा केव। फिर इसको हम बोलेंगे आर्च, क्या बोलेंगे? आर्च। बट this is known as sea cave and this is known as sea arch because it is work of the sea wave. ओके, तो सी केव और सी, क्योंकि पूरे अर्थ में बहुत सारी केव्स है, बहुत सारे आर्चीज है, बट क्योंकि ये सी वेव से बना है, सो इट इज नोन एज सी केव और सी आर्च। एम आई वेरी क्लियर? ओके, लेट्स रीड इट अगेन। चलो पहले से वापस रीड करते ताकि सब समझ में आ गए। The erosion and deposition of sea waves give rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike against the rocks. As a result, cracks develop. पहले तो cracks होते हैं. Over the time, they become larger and wider, which
which is called sea cave. As these caves become larger, only the roof of the caves remains, thus forming sea arches. So now you know what is a sea arch? Yes. अब आर्च के बाद ऊपर का रूफ भी चला गया, अब सिर्फ इतना सा बच गया, तो इसके लिए भी कोई नाम होगा. Let us see. Continuous erosion breaks the roofs and only walls are left. अब सिर्फ पतला सा वॉल बच गया. These walls are called stacks. क्या बोलेंगे उसको? STACKS, stacks. क्या बोलेंगे? Stacks. Okay. The steep rocky coast rising almost vertical above the sea water. ये almost vertical है. आपको पता है ना vertical क्या होता है ना? तो अभी ये शेप बन गया. So the steep rocky coast. अभी steep का मीनिंग हमने आगे लिखा था. What is steep? Yes, less slanting. तो ये आपको vertical दिख रहा है, less slant है बिल्कुल. Yes. So the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. अब ये वाला जो है वर्टिकल खड़ा है स्टेक, तो ऐसे बहुत सारे स्टेक्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लिफ. लेकिन सिर्फ क्लिफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सी क्लिफ. ओके. तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ द सी वेव्स व्हाट डिड वी लर्न? सबसे पहले होता है रॉक, फिर उसमें हो जाते हैं cracks. Because of the cracks, the formation of a cave is made. After cave, there is an arch. After arch, there is a stack. और ये बहुत सारे स्टैक जो एकदम स्ट्रेट या तो वर्टिकल होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लिफ. So, if you want, you can take the screenshot. This tells us the whole journey of a rock becoming a cliff near a seashore. Any doubts? Okay. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. और उससे बनते हैं बीच, क्योंकि क्लिफ आ गए तो पानी इससे आगे नहीं जा सकता, तो यहाँ पर बन जाता है बीच, जहाँ पर हम लोग वेकेशन में जाते हैं. ओके. Any doubts in the sea waves? Okay. Now next topic is work of glacier. ग्लेशियर के लिए अगर आप सिंपल मीनिंग लिखो तो इट इज अ फ्रोजन रिवर. ग्लेशियर मतलब क्या? फ्रोजन रिवर. राइट द मीनिंग. वो हेडिंग को ही अंडरलाइन करके मीनिंग लिख लो. ग्लेशियर मतलब फ्रोजन रिवर. अब ये कैसे लैंड फॉर्म को चेंज करता है, लेट अस सी. ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस. वो तो हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी रिटन. Formed in snow-clad mountain areas. Snow-clad means snow-covered. Underline the word clad and write the meaning covered. Clad meaning covered. अच्छा, फ्रोजन के पहले हमने कौन सा मीनिंग लिखा था? सिल्ट. सिल्ट के बाद लीव्स नहीं बेटा, लेवीज. उसका तो पूरा डेफिनेशन ही दिया है हमको. भूल गए? जो रिवर के दोनों साइड डिपोजिशन होता है, दैट आर नोन एज लेवीज. गॉट इट भव्या? ओके. चलो. सो glaciers are the rivers of ice formed in snow-covered mountain areas. Glaciers erode the landscape by bulldozing rocks. बुलडोजर देखा है आपने? बुलडोजर कौन से कलर का होता है? Yes. It is mostly yellow in color. और वो क्या करता है?
यस, वो लैंड को डिग, यस, लैंड को डिग करता है, कचरा उठाता है, किसी बड़े बिल्डिंग को तोड़ना है तो तोड़ता है, मतलब यू नो व्हाट इज अ बुलडोजर। ठीक है। अब ये जो ग्लेशियर्स है, फ्रोजन रिवर, वो बुलडोजिंग का काम करता है। तो वो किसको तोड़ेगा? दे आर बुलडोजिंग द रॉक्स। Okay, read the sentence again. Glaciers erode the landscape by bulldozing rocks and stones to expose the solid rock below. Glaciers form U-shaped valley by erosion. Now, suppose if this is a mountain, और हमें पता है कि माउंटेन्स में से रिवर्स फ्लो होती है, पता है ना? यस। नाउ ये माउंटेन ऐसी जगह पर है विच इज टोटली स्नो कवर्ड माउंटेन। तो अगर ये माउंटेन स्नो से कवर्ड है तो ये रिवर भी फ्रोजन होगी, ये वाली। यस, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग समर सीजन, ये फ्रोजन रिवर जो है उसके छोटे छोटे आइस के टुकड़े जो है वो नीचे गिरेंगे, नीचे की तरफ। ओके। अब यू नो दैट स्नो, ये जो आइस है, रिवर ऑफ आइस, तो आइस इज वेरी हार्ड। आपके फ्रिज में जो आइस क्यूब है वो अगर मैं निकाल के मारूंगी आपको तो लगेगा कि नहीं लगेगा? घर पे जा वैसे तो आप घर पे ही हो, ये लेक्चर खत्म हो ना उसके बाद फ्रिज में से एक आइस क्यूब निकाल के मम्मी को देना और मम्मी को बोलना मुझे दूर से मारो एक, फिर किसको कितना लगता है वो मुझे कल दिखाना अपना फोरहेड। किसी का ग्रीन कलर हो जाएगा, किसी का ब्लू हो जाएगा, किसी का पर्पल हो जाएगा, है ना? तो इन शॉर्ट यू नो दैट आइस इज वेरी हार्ड। समझ में आ रहा है? यस। तो यही आइस के पीसीस जो है वो थोड़े थोड़े मेल्ट होके ग्लेशियर में से डिटैच होंगे, होके गिरेंगे नीचे। अब जैसे ही वो नीचे गिर रहे हैं द टेम्परेचर इज अगेन लेस, टेम्परेचर तो कम ही है, तो हो सकता है कि नीचे गिरते गिरते दे अगेन बिकम फ्रोजन, है ना, वापस फ्रीज भी हो सकते हैं। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस दैट दे फॉर्म अ यू शेप्ड वैली। अब आपने वैली देखा होगा, ये सपोज माउंटेन्स है ऐसे, तो दिस इज अ वैली, ये वैली है ना, तो यहाँ पर आपको यू शेप दिखता है। Yes. So glaciers form U-shaped valley by erosion. As the ice melts, now when the ice is melting, hollows formed in mountains get filled up with water and form lakes, जिसको हम बोलते हैं टान। अभी क्या होता है कि ये वाले जो आइस के पीसीज है वो गिरेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो अभी हमने प्रीवियस पिक्चर में मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। समझ में आ रही बात? ओके। तो ये रिवर जो है फ्रोजन, वो कभी उसके पीसीस मेल्ट होकर आएंगे नीचे और यहाँ पर वैली में, यू शेप वैली में बन जाएगा लेक, बिकॉज ऑफ दिस फ्रोजन, दिस मेल्टिंग ऑफ द आइस ऑफ द ग्लेशियर। So do you understand how a lake is formed in the U-shaped valley? Yes, very good. So as the ice melts, the hollow formed, hollow मतलब ये वाली जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, इसको hollow बोलते हैं, जो अंदर जाता है वो। Okay? Hollows formed in mountains get filled up with water and form lakes. The material carried by the glaciers, such as small and big rocks, sand and silt, get deposited. As a result, hill-like landform is formed, which is called drumlin. अब क्या होगा कि ये जो लेक बन गया है, अभी हमने जो प्रीवियस पिक्चर में देखा लेक, ओके, तो वो लेक कैसे बना है? वो आइस क्यूब्स जो नीचे पड़े थे उससे बना है यहाँ पर। यस। अब ये आइस के साथ छोटे बड़े रॉक्स भी आए थे नीचे, क्योंकि पर्वत के ऊपर तो बहुत सारे रॉक्स होते हैं। ओके। अब ये पानी जो है वो फ्लो होते होते यहाँ पर भी डिपोजिशन करेगा,
यहाँ पर भी डिपोजिशन करेगा। यहाँ पर आजू बाजू माउंटेन्स, एज वी नो दिस इज द यू शेप, ये पूरा अंदर यू शेप में हो रहा है। यहाँ पर भी माउंटेन है और यहाँ पर भी माउंटेन है। ओके, सो देयर विल बी डिपोजिशन ओवर हियर एंड ओवर हियर ऑल्सो। तो बहुत सारा डिपोजिशन से क्या होगा कि हिल जैसा फॉर्म हो जाएगा। तो यही हिल, द सेम हिल्स, अगर वो सी वेव्स की वजह से बनता है तो दे आर नोन एज क्लिफ, और अगर वो ग्लेशियर की वजह से बनता है तो उसको हम बोलेंगे ड्रमलिन। क्या बोलेंगे? ड्रमलिन। ठीक है, तो वेन एवर द वाटर इज फ्लोइंग इट डिपोजिट्स, पानी के आजू बाजू दोनों बैंक्स पे डिपोजिशन होगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि पानी में बहुत सारा मटेरियल होता है, तो वो दोनों बैंक्स में डिपॉजिट करेगा और बहुत सारा डिपॉजिट होगा तो एक हिल जैसा बन जाएगा। तो when the water makes the hill it is known as cliff, and when glacier makes the hill it is known as drumlin. Am I very clear all of you? ओके, तो अभी हमने वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ ग्लेशियर देखा। सभी में वाटर था, रिवर में भी वाटर, सी में भी वाटर, ग्लेशियर में भी वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विंड। पानी जैसे सब कुछ लेकर जाता है, विंड भी ऐसे ही कुछ लेकर जाती होगी। यस और नो? यस। So what is the role of a wind? That we will learn in the next lecture.